So let us discuss punctuation marks. Punctuation marks are essential because it gives us the opportunity where to stop and where to continue so that we become punctuous, so that we become punctual, and we have control on our writing. That's why learning and using punctuation marks is highly essential. If you can use punctuation marks, it means that you have something to write, but you can close it, and you can also give it a good color, a good excellent presentation, and your writing appears to be interesting, organized, and presentable. Why we use punctuation? Why we use punctuation? This is a basic question. Why we use punctuation? We use punctuation because we do not have intonation, we do not have pauses, which is available to us in the spoken language. When I speak, so I can stop, I can start, I can make a pause, I can increase or decrease my speed, and I can do my intonation. 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 Intonation is the tone, like how you make. If I am angry, so I have a different tone. If I'm slow, I have a different tone. If I'm a fast, I'm a different tone. If I am in hurry, so I have a different tone. If I'm not in hurry, so I have another tone. So this is called intonation. Intonation. Intonation is used in spoken language, while written language doesn't have intonation. When you are writing, so you do not have your voice to show your anger, to show your exclamation, to show your emotions. So for that, you need punctuation. Nowadays, in modern times, we have similes and we have emoticons, emojis, smileys. So we have a lot of ways to show our emotions to people. In the past, only punctuation marks were there. In modern times, we have smileys, we have emojis, emoticons, these beautiful, beautiful smiling figures and angry figures, sad figures, happy figures. So this is the modern form of punctuation. But in the past, or even now in writing, we use punctuation marks. Now there are three types of punctuation marks. Very difficult, easy, and very easy. So we have three classes of punctuation marks as per its difficulties. Very difficult that we have, these are three, or you can make it four. Semicolon, colon, dashes, and comma. These are the most difficult punctuation marks. Comma appears to be easy, but it is not easy. We make a lot of mistakes by using comma, and sometimes we use it unnecessarily. The
easy one that we have, those are like parentheses and some other punctuation marks which are not so difficult. It depends that how much is your practice. And the easiest that we have, that is full stop, sign of interrogation, and sign of exclamation. These are very easy. Everybody knows to put full stop, to put sign of exclamation or sign of interrogation. Sometime the double quotes can be very easy, or it can be easy, just easy. Double quotes, the punctuation marks, which is when we use in the direct speech. Apostrophe is again easy or very easy. It depends how much you know apostrophe. When we become conscious of the punctuation marks, then we never make any mistake. Now, make a comment and tell me that I will be semicolon enthusiast. I will be semicolon enthusiast, and for coming days I will be using semicolon frequently. Make a comment that I will be a semicolon enthusiast, and in coming days I will be using semicolon most frequently. So I will be a semicolon enthusiast. Very good, Rahman. You have used it already. In coming days, I will be using semicolon most frequently. अब देखो ना, अब्दुल गफार ने कामा यूज किया है, कामा नहीं, सेमीकोलन एंथुजियास्ट. यार दुनिया में जो सबसे असल चीज है ना, करना है. मतलब जो कहना है वो करना भी है, जो कहना है वो करना भी है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो कहना है वो करना है. यू से दैट आई विल बी अ सेमीकोलन एंथुजियास्ट. सेमीकोलन एंथुजियास्ट. एंथुजियास्ट मीन्स कि मुझे शौक होगा सेमीकोलन का, तो फिर यूज करो इसको जिस तरह के रहमान ने यूज किया है. So semicolon is the most difficult and the most interesting punctuation mark. मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई कि पंक्चुएशन मार्क्स में 3-4 जो है वो बहुत मुश्किल है, कुछ दरमियान वाले हैं और कुछ जो है वो बहुत आसान है. तो दरमियान वाले जो है वो तो आपको पता है, एपॉस्ट्रोफी और ये सारे पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट मैगट्स होते हैं, ये तो आसान है. जो बहुत आसान है, द इजीएस्ट, वो फुल स्टॉप है, सवालिया निशान है और ताज्जुब का निशान है. और जो मुश्किल है उसमें नंबर 1 जो है, दैट इज सेमीकोलन. नंबर 2 कैन बी कोलन, हाइफन्स, डैशेस, एंड sometime you can use comma also. It is difficult. तो ये 4 जो है इस पे आप फोकस करें. Now we use run on sentences. Run on sentences is that when you use comma, इस तरह अब्दुल गफार ने किया है, खामा दरमियान में कामा डालना. अब चूंकि जब हम सेंटेंस खत्म करते हैं तो आखिर में फुल स्टॉप तो लगाते हैं, या सवालिया निशान लगाते हैं, या ताज्जुब का निशान लगाते हैं, वो तो हमें आ जाता है. ये जो कैपिटलाइजेशन है, प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से शुरू करना, सेंटेंस को कैपिटल लेटर से शुरू करना, ये भी पंक्चुएशन का एक हिस्सा है. पंक्चुएशन तो हम पंक्चुएशन इसलिए करते हैं कि हमारे पास अपना आवाज कंट्रोल में नहीं है. जिस तरह के हम बोलते हैं ना, तो आवाज कंट्रोल में है. मैं बस हो जाता हूं तो मेरी खामोशी जो है, इसका मतलब है कि फुल स्टॉप लग गया. मैं ताज्जुब का इजहार करता हूं तो अपने आंखें निकालता हूं. ठीक है, सवाल पूछता हूं तो हाँ जी,
अब ये चीजें जो है ये तो राइटिंग में नहीं हो सकते ना, तो इस वजह से ये 14 पंक्चुएशन मार्क्स है, ताकि हम अपनी जज्बात का इजहार कर सके या अपनी हालत का इजहार कर सके। आजकल स्माइली आई है, जिसको एमोजीज और एमोटिकॉन्स भी कहते हैं। ये जो खूबसूरत खूबसूरत स्माइलीज होती है, स्माइलिंग फेस, हैप्पी, एंग्री, सैड, लव, तो वो भी पंक्चुएशन का एक नया किस्म है। लेकिन जो पुरानी पंक्चुएशन है, दैट इज नॉट फिनिश्ड। अब इमरान खान जो है इसने लिखा है, आई विल बी अ सेमीकोलन एंथुसियास्ट एंड आई विल बी यूजिंग इट इन माई राइटिंग। तो सेमीकोलन जो है इसको आप कभी कभी कंजंक्शन की जगह यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस के दोनों हिस्से जो है वो बराबर के हो, एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, तो फिर आप कंजंक्शन के बजाय सेमीकोलन यूज करें। ठीक है ना, आपके पास दोनों चॉइसेस है। इमरान खान ने लिखा है, आई विल बी अ सेमीकोलन एंथुसियास्ट एंड, तो जो सेमीकोलन वाले लोग जो सेमीकोलन से मोहब्बत करते हैं, तो वो एंड हटा के क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। ठीक है, तो यू कैन यूज सेमीकोलन फॉर कंजंक्शंस, एंड बट वगैरह के लिए आप सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों जो हिस्से होते हैं, वो दोनों हिस्से जो है वो बराबर के हो, एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग वॉज बार्किंग, द केट वॉज स्लीपिंग। अब देखो ना, ये द डॉग वॉज बार्किंग, द केट वॉज स्लीपिंग। अब रन ऑन सेंटेंस इसको कहते हैं, या कॉमा स्प्लाइस भी उसको कहते हैं, स्प्लाइस, SPLICE, कि हम इन दोनों के दरमियान कामा डालें। हम इन दोनों के दरमियान क्या डालें, कामा। द डॉग वॉज बार्किंग, कामा, द केट वॉज स्लीपिंग। ये सबसे बड़ी गलती है, 90% लोग ये गलती करते हैं। तो इसको रन ऑन सेंटेंस कहते हैं, या कॉमा स्प्लाइस, कॉमा स्प्लाइस। तो ये गलत है, ये मिस्टेक है, यू कैन नॉट डू इट। आप कामा नहीं लगा सकते, आप यहां क्या लगाओगे, या एंड लगाओ। द डॉग वॉज बार्किंग एंड द केट वॉज स्लीपिंग, तो आपने एंड लगाया। जो सेमीकोलन के इंथुजियास्ट होते हैं, जिनको सेमीकोलन बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, तो वो एंड की जगह सेमीकोलन लगाते हैं। सो देन द सेंटेंस बिकम्स मोर ब्यूटिफुल एंड यू एंजॉय इट। Semicolon is used to separate two sentences like conjunction, and both the sentences are related to each other. ये इसका सबसे बड़ा यूज है। इसका जो और यूज है वो ये है कि when you use commas and you have categories, when you use commas and you have मैंने भी सेमीकोलन पे कम से कम कोई साल लगाया है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पंक्चुएशन मार्क, पूरा साल मैंने लगाया है इसको मास्टर करने पे। तो आसान नहीं है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। सो द सेकंड यूज ऑफ सेमीकोलन इज दैट व्हेन देयर आर कॉमास बट देयर आर आल्सो कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, I went to Canada and saw Toronto, Montreal and Vancouver. ठीक है, या पाकिस्तान यूज करो अगर ये सिटीज के नाम आपको याद नहीं है। I went to Pakistan, या I went to Pakistan and saw Islamabad, कामा लाहौर, कामा कराची। फिर आप कराची के अंदर जो है आप क्लिफ्टन, सदर, केंट, ये आप लिखना चाहते हैं, तो आप मुसलसल कामे नहीं लगा सकते।
जो कराची है और कराची के अंदर जो आप कैटेगरीज बनाते हैं कि कराची में आपने क्या देगा, कराची के अंदर क्या देगा, तो वो फिर आप सेमी कॉलन के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आई वेंट टू पाकिस्तान एंड सॉ पिशावर कामा, इस्लामाबाद कामा, लाहौर कामा, कराची। ठीक है, लेकिन आप कराची में मजीद कहना चाहते हैं कि जी कराची में मैंने ये जगह देखी, कैंटोनमेंट, कैलेफ्टन, DHA, बहरिया, कायद आज़म मौजूलियम। तो ये जो है कराची के बाद फिर आप सेमी कॉलन लगाओगे और फिर वो छोटी छोटी सिटीज लिखोगे, छोटी छोटी जगह, और उनके दरमियान कामा लगाओगे। सो दैट इज अनदर यूज ऑफ सेमी colon. Sometimes semicolon is also used for listing, but for listing we use more colon. When you want to explain something more, or you want to you want to explain more, or you want to give a list, so we use colon and sometime semicolon. ये सेमी कॉलन जो है, ये सेमी का मतलब है आधा, और कोलन का मतलब तो ऑलरेडी जो डबल नुक्ते होते हैं उसको कोलन कहते हैं। ठीक है, जब वो डबल कामे हो, डबल फुल स्टॉप हो, तो उसको कोलन कहते हैं। कामा तो कामा है, फुल स्टॉप है। तो सेमी कॉलन जो है वो उसमें फुल स्टॉप का नुक्ता भी है, कामे का नुक्ता भी है। वो जो फुल स्टॉप का नुक्ता है तो वो स्टॉप करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये लिस्टिंग के लिए जो है भी यूज होता है, जो उसके दरमियान कामा है, फुल स्टॉप है। तो कामा भी है, फुल स्टॉप भी है, कोलन भी है, सेमी कोलन। इसके डिफरेंट यूसेस है। सो वी हैव, आई वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज, हाउएवर। हाँ, ये भी सेमी कोलन का एक और यूज है जो नौशेरवान ने दिया है, कि इसमें अब हाउएवर से पहले या देयरफॉर से पहले जो है, जो एडजंक्टिव एडवर्ब्स है या जो कनेक्टर्स है, आम लैंग्वेज में इसको हम कनेक्टर्स कहते हैं। हाउएवर, देयरफॉर, नॉटविथस्टैंडिंग, नॉनदलेस, ये जो रवानी के लिए हम अल्फाज यूज करते हैं, फ्लो के लिए, हाउएवर जैसे। तो इसके हाउएवर से पहले जो है हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये भी इसका एक और यूज है। ये वो वाला यूज नहीं है जो दो सेंटेंसेस को वो करते हैं, सेपरेट करते हैं। वो तो सिंपल दो सेंटेंसेस है, इसमें हाउएवर नहीं होता, क्योंकि हाउएवर में फिर आपको कामा भी लगाना होता है। जो हाउएवर के बगैर है तो उसमें कामा नहीं होता, उसमें सिर्फ सेमीकोलन होता है। So if you want to explain something more, I will come tomorrow, और फिर अब रुक जाते हैं। अच्छा, अब मतलब कल आओगे तो क्या होगा? I will come tomorrow. We will go to market, comma, buy groceries, comma, books and other stuff. तो I will come tomorrow, इसके बाद सस्पेंस है कि आगे क्या होगा। तो इस सस्पेंस के लिए हम कोलन यूज करते हैं, डबल नुक्ते, लेकिन आप सेमी कोलन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर एक्सप्लेनेशन के लिए या सस्पेंस को दूर करने के लिए यू हैव टू यूज छोड़ो एक्सप्लोर इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश को सिर्फ मुझे सुना भी है, दिमाग छोड़ो, दिमाग को इधर ले आओ। मैं जो बोल रहा हूं इसको सुनो, एक्सप्लोरों को बाद में पढ़ो। हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे, कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। सो बहरहाल, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट वर्डिंग सेमीकोलन इज द पॉइंट बिटवीन कॉमा एंड कोलन। हाँ, पॉइंट मीन्स फुल स्टॉप या पॉइंट या पंक्चुएशन मार्क को भी पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट बिटवीन कॉमा एंड कोलन, कोलन कॉमा के दरमियान पॉइंट है। जो पॉइंट है वो क्या है? वो फुल स्टॉप है। तो ये इसमें आपको इसकी शक्ल देखें ना कि इसमें आपको फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप वाला पॉइंट भी है, कामा भी है,
लेकिन वो जो पॉइंट है वो कॉलन का भी एक पॉइंट है, वो कॉलन का भी एक पॉइंट है। तो ये इसका एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश में आपको वही बात जो मैं आपको कह रहा हूं वो उन्होंने आपको कहा है। तो आज के मैंने आपको नोट्स दिए हैं डिटेल्स में, उसको भी पढ़े, उसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है, एक एक चीज़ है उसको पढ़े। सो व्हेन यू वांट टू मेक अ लिस्ट, प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग। कल ये चीज़ें ले आए फॉलोइंग, तो फॉलोइंग के बाद क्या होगा, दो नुक्तों वाला कॉलन, तो कॉलन जो है वो आप उसमें डालोगे। कामा जो है उसको आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, डोंट यूज कॉमा एवरीवेयर, बल्कि अगर आप कामा छोड़ दिए तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो फिर कॉमा को यूज करें, क्योंकि कॉमा जो है हमें किसी और पंक्चुएशन मार्क को इस्तेमाल ही नहीं करने देता। मतलब हमें इतनी आदत पड़ जाती है कॉमा की कि हम बाकी कॉमा टेक्स अस टू कोमा, COMA, ठीक है, कि हमें कॉमा जो है COMMA वो कॉमा में ले जाते हैं, बेहोश कर देते हैं। तो हम कोई और पंक्चुएशन मार्क यूज ही नहीं करते, हर वक्त कामा 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 या फुल स्टॉप, इसके अलावा तो हम जाते नहीं है। इंटरोगेशन सेंटेंस हम बनाते नहीं है, क्वेश्चन तो हमसे बनते नहीं है। एक्सक्लेमेशन हम कौन सा तीर मारते हैं कि एक्सक्लेमेशन लगाते हैं कि जी मैंने ये कारनामा कर दिया, तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं लगाते। तो पेरेंथेसिस जो है, ब्रैकेट्स, वो भी नहीं लगाते, डैशेस भी यूज नहीं करते, तो क्या यूज करते, कामा ही कामा ही कामा ही कामा। तो भाई कामा जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, कामा को रिप्लेस करो, ब्रैकेट से रिप्लेस करो, डैशेस से रिप्लेस करो, हाइफन से रिप्लेस करो, इसको साइन ऑफ इंटरोगेशन से कोई क्वेश्चन बनाओ, कोई एक्सक्लेमेशन करो, कोई जो है ताज्जुब की बात करो, कोई सवाल करो। खामखा सारी जिंदगी यही काम ही लगाओगे। तो कॉमा को ट्रेनिंग के लिए यूज ही ना करो, अपने उंगलियों को बंद करो कि यार मैंने कॉमा यूज नहीं करना। अब देखेंगे कि आपका राइटिंग कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो सेमी कॉलन के जो एंथुजियास्ट है, जो सेमी कॉलन के लवर्स है, फिर वो कॉमा से हेड करते हैं। मैं भी जब अपनी राइटिंग में कामा लगाता हूं तो 100 दफा सोचता हूं कि यार ये जरूरी है, मैं कोई और चीज तो नहीं लगा सकता। ये आपका एक बड़ा मेंटल ट्रेनिंग, नेक्स्ट टाइम जब भी आप राइटिंग करें तो फिर होगा ना, हम राइटिंग करते भी नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेफ टू में आपको बार बार कहता हूं, अभी आज हमारी आखिरी क्लास है, तो प्लीज सेफ टू में प्रैक्टिस करें, राइटिंग करें मुसलसल। राइटिंग करोगे तो पंक्चुएशन मार्क यूज करोगे ना, जब राइटिंग ही नहीं करते तो पंक्चुएशन मार्क को कहाँ यूज करोगे। तो कमिंग डेज में कॉमा का यूज जो है आप छोड़ दे, बाकी अब फुल स्टॉप तो लाजमी है, फुल स्टॉप जो है उसके बगैर तो आप नहीं जा सकते। और जो है सेमी कॉलन आप यूज करें, कॉलन यूज करें, ब्रैकेट्स यूज करें, हाइफन यूज करें, डैश यूज करें, और इस तरह की चीजें यूज करें ना, साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये यूज करें बहुत ज्यादा। आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग में ऑटोमेटिकली एक खूबसूरती आ जाएगी। बड़े बड़े जो अथर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो पंक्चुएशन को बहुत शौक से यूज करते हैं। और पंक्चुएशन का लेस जो 14 मार्क्स है, वो जो पॉइंट्स है, वो सबको अपने सामने लिखो कि मैंने ये वाला भी यूज करना है, ये वाला भी यूज करना है, ये वाला भी यूज करना है। कोई आइडिया जहन में ले आओ, कोई क्रिएटिविटी ले आओ, किसी टॉपिक पे लिखो, कोई क्रिकेट पे लिखो, कोई पाकिस्तान पे लिखो, पैलेस्टाइन पे लिखो, किसी चीज पे, कश्मीर पे लिखो, किसी चीज पे लिखो। टॉपिक तो 50 टॉपिक से 500 टॉपिक से आपके CSS के सिलेबस में, तो उधर से कोई टॉपिक उठाओ और फिर उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, लिखना शुरू करो, दरमियान में जो है पंक्चुएशन मार्क को डालो। So thank you everybody for your practice, and now coming days will be only for practice and evaluation. I will be giving you some tasks and some lectures also, general lectures, but mostly we will focus on writing and evaluation in SAFE 2. WhatsApp में न करेंगे उधर फिर गुम हो जाते हैं। SAFE 2 में जब करते हो तो मुझे टैग करो, 24 घंटों में मैं आपको जवाब नहीं देता, दोबारा टैग करो, फिर नहीं देता, तीसरी दफा करो, तो कभी ना कभी फेसबुक मुझे वो दिखाएगा।
सो और फिर या मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजो कि सर मेरे सेव टू में ये लिंक है, मैंने अपनी चीज़ शेयर की है, इसको प्लीज़ एवेल्युएट करें. सो ऑल द बेस्ट. नाउ सी यू इन essay class, and next classes will continue your practice, but I will be announcing it next classes, next courses. जो मैंने आपको अक्टूबर के टॉपिक्स दिए हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने कर दिए, सिर्फ एसेज उसमें नहीं है और एक स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक नहीं है, बाकी सारे मैंने किए. तो ऐसे चूंकि आपके लोगों पे लोड बहुत बन रहा है कि इतनी ज़्यादा एसेस कैसे करोगे, तो वो आप अभी जो 5-10 दिन है उसमें आप एसेस भी करें और ये भी करें. अभी हम ऐसे में जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं कि आप कौन से पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं. कामा के अलावा, कामा जो है वो आपने छोड़ना है, बाकी हम देखते हैं कि हाउ यू यूज़ योर पंक्चुएशन मार्क्स. सो लेट्स गो टू सेफ essay classroom.